नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के पत्रिका भवन में शोषित समुदाय कड़ा व कोटा की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल नहीं, पूर्व सीएम कुमारस्वामी बोले, कर्नाटका में बनेगी एनडीए सरकार। लोक अदालत के चक्कर काटकर तंग आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ने कही ऐसी बात। क्या देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय? 15 दिन में दूसरी बार नागपुर दौरे के क्या है मायने? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार और बस की टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पत्रिका भवन में शोषित समुदाय व कोटा की ओर से एक प्रेस मीट की गई, जिसमें कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, डॉक्टर राजशेखर सेडमकर, बाबू पासवान, अमृतराव चिमकोड़े, रमेश डाकुड़गी, सिद्धार्थ पाईगे, श्रीपतराव दीने, बसवराज माड़गे और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजशेखर सेडमकर, मन्नान सेठ और बाबू पासवान ने बेबुनियाद मुद्दा कांड रचकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कीचड़ उछालने की भाजपा की कोशिश की निंदा की और कहा कि कल 5 अगस्त को शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पत्रिका उद्देश्य कर्नाटक राज्यದ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಮನುವಾದಿಗಳು ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 15 ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅವ್ರ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಜಮೀನು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದೂ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಾವರಿಗೆ ಬಡವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಮೀನು. ಆ ಜಮೀನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಮೀನ್ಗ ಇವರೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡಾದಾಗ ತಕೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರ ಇದೇ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಡೀ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮನುವಾದಿಗಳು ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರದಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC/ST ಕಾನೂನು ತಂದ್ರು. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC/ST ಕಾನೂನು ತಂದ್ರು. SCP/TSPಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಯುವಕರಿಗೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿ ಮಾಡಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೂಡ ಇಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೆಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಿಸ್ಲಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕಂತ ಪಿತೂರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೊಮ್ಮಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೇಸ್ಲೆಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ವಿ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಎಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರದೊಂದು ಡಿಫೇಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಇವು ನಡೀತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. संविधान संरक्षण समिति का जिला अध्यक्ष
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप जानते हैं। 5 तारीख को बीदर में शोषित वर्ग वकोटा की तरफ से, जो जिला शाखा है उसकी तरफ से एक बड़े पैमाने पे एहतजाज रखा गया है। ये एहतजाज इसलिए रखा गया है कि कर्नाटक में जो हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लगा करके जेडीएस और बीजेपी के लोग गवर्नर के थ्रू जो नोटिस दिए हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं। और ऐसा करके बीजेपी और जेडीएस के लोग सिद्धरामैया साहब के नाम को खराब करना चाहते हैं। सिद्धरामैया साहब गुज़िश्ता सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। गुज़िश्ता के 5 साल का जो पीरियड था उनका हमारे देखने में जो आया है एक सुनहरा पीरियड था, गोल्डन पीरियड। इतना डेवलपमेंट हुआ, इतने बड़े बड़े काम हुए, मगर एक भी चार्ज नहीं था। स्पॉटलेस लाइफ है उनका। एक पूरी पॉलिटिकल कैरियर में उनकी लाइफ पे, उनके कैरियर पे एक भी काला धब्बा नहीं है। एक नॉन करप्ट आदमी बोल के पूरे लोगों को मशहूर है। उनके ऊपर ऐसे आरोप जो बेसलेस है, जिसका सत्य से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लगा करके उनकी छवि को बदनाम करना और कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में हम एक बहुत बड़े पैमाने पे 5 तारीख को बीदर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत करें, इसका सपोर्ट करें और इसको कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इनके षड्यंत्र को एक्सपोज करें। ठीक। ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಾತ್ರ ದೇನಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, दलित संगठनಗಳ नायकರು। बीदर जिला के औरादबी तालुके में स्थित बसवा मंडप में 5 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक 1 महीने तक परम पूजा श्री नादोजा डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू के मार्गदर्शन में प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रवचन कार्यक्रम 1 महीने तक प्रतिदिन शाम 7 बजे बसवा मंडप घोड़े लेआउट अमरेश्वर कॉलेज के सामने आयोजित होगा। यह प्रवचन कार्यक्रम शरणे सुवर्ण शरणप्पा चिमकोड़े द्वारा आयोजित किया जाएगा। श्रावण मास प्रवचन सेवा समिति औराद और अन्य ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिदिन प्रवचन सुनने आए। बसवा समिति अध्यक्ष औराद के अध्यक्ष धनराज राघा ने इस प्रवचन कार्यक्रम के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। अनुभव मंडप बसव कल्याण बीदर 2024 ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಮಂಟಪ ಗುಳೆ ಲೇಔಟ್ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 5/8/24 ದಿನಾಂಕ 3/9/24 ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟೆಗೆ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಆಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೂ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನರಾಜ್ ರಾಘವನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮಗಳ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ। ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಹಿಸಲಿರುವ ಗುರು ಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ವಾಸಿಂ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಸುವರ್ಣ ಚಿಂಕೋಡೆ ತಾಯಿಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ ನಾಳೆ 5ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 3/9/24 ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗುಳೆ
ಬಸವ ಮಂಟಪ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನರಾಜ್ ರಾಗ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆದು ತಂದೆ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಆಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. कर्नाटका के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटका में भाजपा और जेडीएस मिलकर एनडीए सरकार बनाएगी. इसके लिए वह दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे. उनकी पार्टी का एक बार फिर से कांग्रेस से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है. मुद्दा घोटाले के खिलाफ निकाली जा रही मैसूर पदयात्रा के दौरान एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के कार्यकर्ता मिलकर काम करें. मेरे लिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है. आप सबके आशीर्वाद से मैं 2 बार कर्नाटका का सीएम रहा. कर्नाटका और यहाँ के लोगों का विकास मेरे लिए जरूरी है. मैं आने वाले दिनों में आपके लिए काम करूंगा. मेरा लक्ष्य भाजपा जेडीएस गठबंधन सरकार को वापस लाना है, जो हर परिवार के कल्याण की देखभाल करेगी. कांग्रेस के साथ 14 महीने तक सरकार चलाने के अनुभव को लेकर कुमारस्वामी ने कहा कि अब मेरा कांग्रेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं है. मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, वो तो आप लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने पैसा लूटने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसानों का 25,000 करोड़ का कर्ज माफ किया. वायनाड में भूस्खलन के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ लापता हुई कर्नाटका के नेल्याहुदिकेरी के महिला दिव्या का शव शुक्रवार को मिल गया. नेल्याहुदिकेरी नलवाथेकेरे निवासी पोन्नम्मा ने कहा है कि उनकी बेटी 35 वर्षीय दिव्या की शादी वायनाड में चुलमाला से हुई थी. भूस्खलन के बाद दिव्या समेत परिवार के 9 सदस्य लापता हो गए थे. पोन्नम्मा ने अपनी बेटी और उसके परिवार वालों का पता लगाने की अपील की थी. परिवार के सदस्यों ने कहा कि शुक्रवार शाम को 8 सदस्यों के शवों का पता लगाया गया. दिव्या और उनके बेटे लक्षित का शव एक साथ मिला था. दिव्या वायनाड के एक अस्पताल में काम करती थी. जिला प्रशासन के अनुसार शनिवार रात तक 219 शव और 143 से अधिक शरीर के अंग बरामद किए गए, जबकि 206 लोग लापता हैं. एटीएम मशीन को काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए गए. यह घटना आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में हुई है. शनिवार रात कुछ चोर रामनगर के पास स्थित एटीएम में घुस गए. उन्होंने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटा और उसमें से रखे 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. यह कार्यवाही इतनी जल्दबाजी में की गई कि एटीएम का अलार्म सिस्टम सक्रिय होने और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर पैसे लेकर भाग गए. एटीएम से पैसे चोरी होने का आज सुबह पता चला. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चोरों की पहचान करते हुए मामला दर्ज कर लिया. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. देखते हैं समाचार. उत्तर प्रदेश के इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार और बस के आपस में टकराने से दर्दनाक हादसा हो गया है. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने नींद की वजह से कार नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से कार बस से जा टकराई. वही टक्कर से बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के बगल में गड्ढे में जा गिरी, जिसमें अब तक कुल 7 लोगों की मौत हुई. वही कुछ यात्री घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि बस रायबरेली से दिल्ली की तरफ जा रही थी. इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को बस से बाहर निकाला. यह घटना इटावा के थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 129 के पास की है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालतों के मामलों से इतने तंग आ गए हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं. लोक अदालतें ऐसे मंच
हैं, जहां न्यायालयों में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों और मामलों का निपटारा या सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया जाता है। पारस्परिक रूप से स्वीकृत समझौते के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में विशेष लोक अदालत सप्ताह के उपलक्ष्य में कहा, लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अदालत के मामलों से कि वे कोई भी समझौता चाहते हैं, बस अदालत से दूर करा दीजिए। यह प्रक्रिया ही सजा है और यह हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का वक्त करीब है। इसी बीच पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की कमान नए नेता को सौंपी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, वहीं इस रेस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। अटकलों और चर्चाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे और आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात की। 15 दिन में फडणवीस का यह दूसरा नागपुर दौरा है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय हो गया है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कम करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन कर बिल संसद में पेश कर सकती है। इस बिल को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी हमेशा से बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी को मीडिया को लीक किया है। यह जानकारी सरकार को पहले संसद में देना चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे कराएगी तो उसका नतीजा क्या होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हापुड़ में बस ड्राइवर ने युवती से छेड़छाड़ करते हुए अपना हाथ काटकर खून से युवती की मांग भरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, युवती द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मार दिया। युवती ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। बस जैसे ही हापुड़ नगर रेलवे रोड स्थित चौकी के निकट पहुंची तो परिजनों ने बस को रोककर उसमें तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की जमकर धुलाई कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। बता दें कि हापुड़ निवासी युवती पिछले 1 साल से नोएडा में एक कंपनी में काम करती है और स्टाफ बस से रोज आती जाती। युवती ने बताया कि बस चालक काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था। उसने बताया कि शनिवार को नोएडा से वापस आते समय बस चालक ने एक बार फिर बस के गेट बंद कर दिए और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी ने अपना हाथ काटकर खून से उसकी मांग भर दी। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने कई थप्पड़ उसे जड़ दिए, जिसके बाद युवती ने पूरे मामले की जानकारी फोन पर हापुड़ स्थित अपने परिजनों को दे दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अंग्रेजी के कुछ खास शब्द शेयर करते हैं, जिनका मतलब शशि थरूर यादगार यानी कि मेमोरेबल शब्द लिखकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल शशि थरूर ने वायनाड का वीडियो शेयर करते हुए यह शब्द लिखा, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। हालांकि बाद में शशि थरूर ने मेमोरेबल का मतलब समझाया और बताया कि उन्होंने वायनाड त्रासदी के बीच राहत पहुंचाने वाला वीडियो शेयर कर इस बात का इस्तेमाल क्यों किया। शशि थरूर ने वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद आई त्रासदी में लोगों तक राहत पहुंचाने का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में ट्रक से राहत सामग्री उतारते और राहत शिविरों के अलावा भूस्खलन से प्रभावित जगहों को दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए शशि थरूर ने लिखा, वायनाड में एक मेमोरेबल दिन की कुछ यादें। इसके बाद लोगों ने मेमोरेबल शब्द पर आपत्ति जताई और शशि थरूर को ट्रोल कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में शोषित समुदाय गड़ा व कोटा की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल नहीं, पूर्व सीएम कुमारस्वामी बोले, कर्नाटका में बनेगी एनडीए सरकार। लोक अदालत के चक्कर काटकर तंग आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ने कही ऐसी बात। क्या देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय, 15 दिन में दूसरी बार नागपुर दौरे के क्या है मायने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार और बस की टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।